This third question, medians of a triangle are concurrent. Or concurrent. Let here triangle ABC. आप उसमें कर चुके हैं ज्योमेट्री में कि मीडियंस ऑफ a triangle, but here ABC, and let the vectors, position vector is vector A, vector B and vector C. Should I again recall the position vector? किसी भी पॉइंट का वेक्टर नहीं हो सकता, ये मैंने कल बताया था, क्योंकि वेक्टर तो कभी एक लाइन होगा जिसका कोई डायरेक्शन होगा, पॉइंट का वेक्टर नहीं होगा. तो आई हैड टोल्ड यू वेरी क्लियरली, इफ एनी वेक्टर इज शोन ऑफ अ पॉइंट, then that will be position vector, and that vector must have been directed by some origin of reference. What we had in fun, I had used boss. फन में उठाया था कि वो बॉस होगा, मतलब कहीं ना कहीं होगा, वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, खुद वो पॉइंट भी हो सकता है. तो कह रहा है कि देन मीडियन, तो आई हैव सपोज्ड let ABC having position vectors vector A, vector B, vector C, means OA vector, OB vector, OC vector being the vectors A, vector B, vector C. I'm not showing O, I'm not telling it. Simply I'm telling A, B, C are having position vectors. Then prove that the medians of the triangle D, E and F और concurrent. एक कर दूं, ऐसे ही कर देंगे आप. Here D is position vector of D equal to, why position vector? D the point, B plus C by 2. And we know that medians meet at a point 2:1. They are upward to here 1, then point of intersection as divided in the ratio 2:1. Therefore AD here and 2:1 here. D is B plus C by 2. No, AD हाँ, B plus C by 2. Here is vector A. Then division point, that is 2 into B plus C by 2 into 1 into A whole divided by 2 plus 1. You know mx2 nx1 upon m plus n, 2 plus 1, that is B plus C plus A by 3. वो वेक्टर ही है, मैं ऐसे एरो नहीं मार करके लाइन खींच देता हूं तो भी आप समझेंगे. That is 3. Similarly, I shall not do. Similarly, if we divide CF in the ratio here 2 and there 1, and F is noted as A plus B by 2 and C is vector C, R, B, E, the same way you will be getting here in, मैं लिख दूंगा या क्या लिखूं, here we find in BE and CF
the point of division in the ratio 2:1 being is a plus b plus c by 3. Since everywhere we are getting a plus b plus c by 3, so lines are concurrent. हर जगह वही है, इसलिए ये एक जगह पर मिल रही हैं जिसका पोजीशन वेक्टर से दैट इज जी, जनरली हम लोग सेंट्रॉइड लिखते हैं a plus b plus c by 3. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा देन फोर्थ क्वेश्चन, यस फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i minus 6j plus 2k. I will not go back to that formula, otherwise you must be knowing. So here I am writing, we know that the magnitude of AI, BJ, CK, ABC are the scalars and IJK are the unit vectors along OX, OY, OZ is under root a square plus b square plus c square. क्या मैं याद दिलाऊं, यही ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं. तो फिर कह रहा है क्या कि फाइंड द यूनिट वेक्टर. तो वेक्टर 3i minus 6j plus 2k, ये एक कोई वेक्टर है, एक वेक्टर है. अब इसके बाद से तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एज आई हैड टोल्ड यू अबव, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट a square, b square and c square, and that is equal to 7. So इसका मैग्नीट्यूड हो गया 7. अगर वो कहे फाइंड द यूनिट, कह ही रहा है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा, कह रहा है ये यूनिट वेक्टर हो, वो 7 नहीं हो, उसका वो जो वेक्टर हो 7 नहीं हो, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो इसका तो 7 है ना. सो यूनिट वेक्टर ये 3i minus 6j plus 2k होल बाई 7. अरे इसका जो मैग्नीट्यूड है 7 कह रहा है ना 7 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए. सो वी कैन डिवाइड बाई 7. We can divide by 7. Next, show that the 3 points are collinear. Just I show you because it's not that I should be going much. Collinear, then fifth, AB, BC and AC. Point A given, point A given, point B given, point C given. तो इनके वेक्टर्स क्या है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A दैट इज -2i. लुक हियर, वो तो कोऑर्डिनेट्स है, तो वेक्टर क्या होगा -2i प्लस 3j प्लस 5k. वेक्टर B that is I plus 2j, I plus 2j plus 3k, and position vector of C that is 7i plus 0j
माइनस के, ये है ये पोजीशन वेक्टर्स पॉइंट्स हैं। जैसे एक्स वाई जेड किसी का पॉइंट होगा तो व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वैसे ही लिखा हूं पोजीशन वेक्टर्स। अब क्या कह रहा है, देन ए बी कह रहा है कि द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बेटा आप ए बी निकाल लीजिएगा, ए बी वेक्टर, देन बी सी वेक्टर, देन ए सी वेक्टर आप निकाल लीजिएगा। एक दिखला दे रहा हूं, ए बी वेक्टर दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए बी का वेक्टर क्या होगा, बी में से ए को हटाएंगे, ए बी सी सी माइनस बी, ए सी सी में से ए के वेक्टर को हटाएंगे तो ए बी, देन इसको कर दूं दैट इज इक्वल टू बी में से कर रहा हूं -3i माइनस जे, देखा आई में से इतना हटा दिया तो ये माइनस क्यों होगा, ये तो आई में से होगा तो 3i एंड 2j माइनस 3j दैट इज माइनस j एंड 3k माइनस 5k माइनस 2k। ऐसे ही BC, ऐसे ही AC। और अगर आप देखेंगे कि अगर इस तरह से आप देखेंगे कि AB प्लस BC इक्वल टू AC, जरा कम BC I have got, and then we are finding, I just say that BC and here, okay, AB and BC are parallel, show that the vectors are collinear। ऐसे ही कर दे रहा है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और AB प्लस BC दैट इज, आप देख लेंगे कि दैट इज AC एंड हेंस AB का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अभी आपने देखा √x² प्लस y² प्लस z², ये भी तब कहेंगे ABC आर कोलिनियर, ABC आर कोलिनियर। क्यों, क्योंकि AB प्लस BC AC हुआ एंड B इज द कॉमन, सो कोलिनियरिटी। और आप देख लीजिएगा कि AB इज, फिर उसके बाद और भी कह रहा है क्या, वेक्टर्स एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ हो गया, हाँ, 6th, शो दैट द पॉइंट्स ABC from the words form the vertices of a right angle triangle. These questions are also done in the solution. You will find, perhaps this will be with you, so that these are coplanar. Ab coplanar, that is yes. Show that the vectors a minus 2b plus 3c, a minus 3b plus 5c, a minus 3b plus 5c, and minus 2a plus 3b minus 4c are coplanar। तो इसमें तरीका यही है कि वन वेक्टर a माइनस 2b प्लस 3c इक्वल टू x इंटू a वेक्टर माइनस 3b प्लस 5c, अभी समझा रहा हूं बेटा, प्लस y इंटू माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c।
ये जब भी कभी एक और मेथड है आगे जाकर के जब हम पाएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, लेकिन यहां पर है अभी तो यही एक तरीका है। कोई एक वेक्टर होगा दैट विल बी एक्स टाइम एक्स मल्टीपल, यानी स्केलर मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट प्लेन, जैसे एक्स वाई है तो एक्स इंटू दिस प्लस वाई इंटू ये होगा। और इसमें कंपेयरिंग द इक्वेशन वी हैव, देखना वी हैव वन इक्वल टू, अब ए को कंपेयर करना तो 1 इक्वल टू एक्स और -2y, x -2y। बी को कंपेयर करना तो -2 और बी को कंपेयर करना तो क्या करना, -3x और +3y, और सी को कंपेयर करना तो 3 इक्वल टू कितना, +5x, देखो, एंड -4y। दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सॉल्विंग 1 and 2, find x and y and substitute in third if it satisfies, then the vectors are coplanar। यही तरीका है, यही तरीका है। क्या करेंगे कि इनमें देखो ए का कोफिशिएंट, यानी यहां पर 1 इक्वल टू x -2y, बी का -2x -2 इक्वल टू, लुक हियर, देन -3x एंड हियर 3y, और c को कंपेयर करेंगे तो 3 इक्वल टू हियर 5x एंड देयर -4y। 1 2 से कम सॉल्व करो, जो अपना पुराना मेथड क्लास 8 वाला मेथड है उसे सॉल्व करो, वो x और y जो आए सब्स्टिट्यूट करो थर्ड में। इफ इट सेटिस्फाई, मतलब उसमें बिल्कुल पक्का हो जाए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। नेक्स्ट, इसमें किया भी होगा, देखना, हाँ, दिस वेक्टर, हाँ, सम स्केलर x एंड y उसने किया है, 1 इक्वल टू x -2y -3x +3y इक्वल टू -2 एंड 5x -4y इक्वल टू 3 किया है। उसमें x इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू x इक्वल टू 1/3 एंड y इक्वल टू -1/3 आया। सॉल्व करने के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड से, एंड देन सब्स्टिट्यूटेड इन थर्ड, it got satisfied and hence vectors are coplanar. Next, points L, M, N divide the इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, हैं 8 छोड़ रहा हूं, 9 छोड़ो, अब जल्दी से हाँ कर रहा हूं, ये 9th कर दे रहा हूं। D, E are the, बहुत असल बात, सब एक लेबोरियस क्वेश्चंस हैं, सब्ट्रैक्ट करो, ये करो, तो खैर आपको तो करना ही है, मैंने उतना करके छोड़ दिया क्योंकि यू आर गेटिंग। देखिए एक ट्रायंगल, हाँ 9th ना, D, E are the mid points of the sides AB and AC। एक और अच्छा इसमें बात मिलेगा जो मैं समझाना चाहता था, A B C, या तो कहते A, द पोजिशन वेक्टर ऑफ A B C आर वेक्टर A, वेक्टर V, वेक्टर C। लेकिन मोस्टली ज्योमेट्रिकल प्रूफ में अगर आप एक छोटा और आसान बनाना चाहते हैं तो कह देंगे लेट A बी द ओरिजिन, अरे ओरिजिन बोला नहीं, ओरिजिन ऑफ रिफरेंस, origin of reference. So what is the vector? 0, and
ए बी equal to B and AC equal to C. So here the vector V, here vector C. क्यों? क्योंकि ओरिजिन से AB को मेजर किया गया and I have told it is V, AC C, तो इसलिए इनका पोजीशन वेक्टर हो गया. हमने सब सपोज किया है, नॉट गिवन. A क्यों सर आपने जीरो मान लिया? A से देखो तो छोटा छोटा आ गया, नहीं तो A भी रहता, इसलिए ऐसा किया गया. तो कह रहा है 9 में एंगल शो दैट बी ई प्लस डी सी, बी व्हाट इज ई, बी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी. ए बी डी हियर एंड हियर सी, हियर ई. डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी डी एंड ई, दैट इज ए बी हियर डी, D A B and AC कह रहा है. शो दैट BE प्लस DC, BE प्लस DC इक्वल टू, तो BE आपको करना पड़ेगा, BE एंड DC. तो E इज व्हाट इज दैट? C by 2 है. अरे देखो ना, बी इज दैट इज बी, तो बी है, ई देन बी इज द मिड पॉइंट्स. व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी? दैट इज 0 प्लस सी बाई 2. एंड व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ, लिख दे रहा हूं, मिड पॉइंट ऑफ बी is equal to 0 plus b by 2. This is b by 2. And what midpoint D, and here midpoint E, that is 0 plus c by 2, and this is c by 2. तो कह रहा है कि BE and CF, BE and CD. So BE plus CD is what? BE means the coordinates vector E minus B, यानी B by 2 minus B. The E is C by 2. E is C by 2, then C by 2 minus B. And the CD vector B and CD vector plus CD देख लो, D is what? I have written B by 2. तो CD is B by 2 minus C. तो ये तो C, and what to be to prove? 3 by 2 BC, 3 by 2 C minus B होना चाहिए, C minus B. तो then C minus 2B plus B minus 2C whole by 2, and then this is B, and यहाँ पर कहीं पर गड़बड़ी हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है. B by 2 and here C by 2, and then B plus DC, BE here it is, E is C by 2, BE and DC that is BE, that is E is here C by 2, then BE is C by 2 minus B, बिल्कुल ठीक है, and CD is B by 2 as ये, this is B by 2 minus C. तो कहाँ से गड़बड़ी हो रही है? कुछ और गड़बड़ हो रहा है, लिखने में ही कोई गड़बड़ हुआ है. A B C, then 0, then B, then C, then D point is D, कह रहा है वो का कोऑर्डिनेट. D and E are the mid points of the side AB and AC. तो D is B by 2, B plus 0 by 2, E is 0 plus C by 2,
देन इट वांटेड हाँ कि BE प्लस DC, BE C/2 माइनस B, ठीक है, और DC इज हियर DC कह रहा है ये DC, देन C माइनस B/2, तो here then C minus 2B, C minus B, then this is 3C minus 3B by 2, this is 3/2 C minus B, 3/2 C minus, then 3/2 C minus B मतलब 3/2 times the अच्छा what is BC, that is C minus B, this is equal to 3/2 and vector BC. Why vector BC? Because position vector of C minus position vector of B, that is proved. जरा सा कोई लेटर इधर उधर हुआ, you will be getting the different one. Then next, एक वो कोलिनियर बिल्कुल वैसे ही करेंगे. फोर्थ ये तो हो चुका ना, फोर्थ आई हैव डन इट, फोर एक्सरसाइज है वो. हाँ तो वो वहीं तक है क्या? 6 क्वेश्चन तक था क्या? ओनली 6 क्वेश्चंस? नहीं, गेट डाउन देखूं नहीं तो खत्म करूंगा, ठीक है. हाँ 9, अच्छा दिस वाज 9 है ना, 9, ओके नेक्स्ट. हाँ एक्सरसाइज, राइट यू आर. P is the point of intersection of its diagonals, O the origin of reference. Then हाँ देखना है फर्स्ट क्वेश्चन. हमें आज स्केलर, आई वांटेड टू स्टार्ट स्केलर प्रोडक्ट. क्वेश्चन करने में तो बहुत टाइम सब लग रहा है और कहीं मिस हो जा रहा है तो और गलत. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. P is the point of intersection of its diagonals. P the point of intersection of the diagonals. O the origin, here some O the origin कहीं भी है. O the origin, origin of reference, show that OA plus OB plus OC plus OD. तो चलो O is vector A, this is vector B, this is sector C, this is vector D. क्यों? क्योंकि OA, OB, OC, OD को हमने ABC वेक्टर्स मान लिया तो पोजीशन वेक्टर हो गया. अब O की चर्चा नहीं है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCD. देन व्हाट इज देयर, व्हाट डज इट से? OA, OB, OC, OD, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D. OA प्लस OB प्लस, बेटा ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं. आप O ओरिजिन दिया है इसलिए OA, लेकिन हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ A मान लिया वेक्टर A, तो OA इज, आई एम नॉट मेकिंग अननेसेसरी, इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड. OA इज वेक्टर A. आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट इफ डायरेक्टेड, देन वो पॉइंट का वेक्टर हो सकता है. तो OA, OB, OC, OD, दैट इज A प्लस B प्लस C प्लस D, दैट इज इक्वल टू 4OP. OP, what is the midpoint of AC, that is A plus C/2, midpoint of BD is B plus D/2, तो OP
OP, that is A plus C by 2, and here also B plus D by 2. तो ऐड करूं मैं इनके OP को, तो A plus C by 2 and B plus D by 2. It wanted, this is the vector OP each. क्यों? O origin है और P का पॉइंट C plus A by 2 and B plus D by 2. It wanted, so 4 times now 4 OP equal to A plus C by 2, A plus C by 2, देखना A plus C by 2, दोनों को ऐड कर रहा हूं, दोनों एक ही चीज है, इसलिए दोनों को ऐड कर दे रहा हूं, तो भी दिस इज डबल कर दिया ना, ट्वाइस OP कर दिया, ट्वाइस OP, दैट इज A plus B plus C plus D by 2 हो गया ना, ट्वाइस OP. तो 4 times 4 OP इक्वल टू A, ट्वाइस OP इक्वल टू A. तो अगेन ट्वाइस डबल करें, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस OP इक्वल टू A plus B plus C plus D, that is okay, by 2 into 2, that is A plus B plus C plus D. ऐसा तो नहीं कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही समझ रहा हूं, फिर से बता रहा हूं. कह रहा है क्वेश्चन, एक कोई पैरेललोग्राम है, ABCD हमने मान लिया, वो दे रहा है O कि कोई ओरिजिन नहीं देता तो उसको OP कहने का हक नहीं था, इसलिए O दे रहा है और कह रहा है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है. तो हमने मान लिया कि ठीक है, जब ओरिजिन ऑफ रेफरेंस O है तो OA is A, OB is B, OC is C and OD is D. So position vectors of ABCD are vector A, vector B, vector C and vector D. चलिए अब कह रहा है then OP vector is OP, तो OP वेक्टर का तो P का ये दिया हूं, मिड पॉइंट ऑफ AC A प्लस C बाई, मिड पॉइंट ऑफ BC B प्लस D बाई 2. तो ये भी OP है और ये भी OP है, तो डबल कर लिया इनको. क्यों डबल किया सर आपने? क्योंकि सब A प्लस B प्लस C प्लस D चाह रहा है, इसलिए डबल कर लिया, या इनको ऐड कर दिया तो A प्लस C बाई 2 एंड B प्लस D बाई 2, डबल OP यानी A प्लस B प्लस C बाई 2. लेकिन उसका भी डबल चाह रहे हैं, 4 टाइम्स, इट वांटेड 4 टाइम्स, सो इससे भी और भी डबल किया, तो ये 2 कैंसिल एंड A प्लस B प्लस C बाई 2. उसकी बात को मानते जाएं, चलते जाएं, रिजल्ट आता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे नोट करने में, हमारे कभी कभी देखिए ना, मैं भी ऐसे करके और माइनस का प्लस कर दिया और ये होता है, तो ये कहीं भी हो सकता है. तो आप अपनी, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे कि नहीं मैं तो मेथड तो हमारा ठीक है, गलती कहाँ है, तो आप तुरंत जाएंगे कि कहीं नोट डाउन में तो नहीं गलती है, या क्वेश्चन में वो गलती तो नहीं है. 6 क्या है? ABC, द पॉइंट P एंड Q, JARE नहीं है, वो R है, ऑन AB एंड AC, AP 1/3 and AQ C/3, AB is A, AC is B, then show that PQ equal to 3/2 BC and PQ is पर. चलिए इसको भी कर लें, फिर उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट में जाऊंगा, फिर इसको करूंगा. ये इन ट्रायंगल ABC, लेट A द ओरिजिन, इसलिए ये B वेक्टर हो गया, C वेक्टर हो गया, यहां 0 वेक्टर हो गया, 0 वेक्टर हो. ABC द पॉइंट्स P एंड Q आर ऑन AB एंड दैट इज AP इज टू AB. और भी देखिए, AP इज टू AB, दैट इज 1:3, यानी यहां 1 है तो यहां 2 होगा. कैसे? अरे AB 3 टाइम्स है AP के,
ए पी के 3 टाइम्स है, तो अगर 1 है तो इधर 2 है, तभी तो ए बी 3 टाइम्स होगा। फिर से ए पी 1:3, ए पी इज टू ए पी, देयर फोर ए पी इज टू पी बी, दैट इज इक्वल टू 1:2। ये और इसी तरह से ए क्यू एंड ए सी सिमिलरली ए क्यू is to QC, that is also 1:2, क्योंकि वैसे ही बिल्कुल उसको भी दे रहा है। कह रहा है AQ and AC are such that is one way। if वेक्टर AB कह रहा है वेक्टर A है, वो तो मैंने मान AB is वेक्टर A, उसने बताया भाई दूसरा हमें मजबूर होकर के मानना पड़ेगा A and here and वेक्टर ए सी इज वेक्टर, उसने कहा है क्वेश्चन में, तो हमें उसको मानना पड़ेगा। हमने नहीं तो ए और बी मान लिया था। तो ए सी, देन सो दैट पी क्यू इक्वल टू 3/2 बी सी, पी क्यू, पी एंड क्यू, ये इसका 3। तो पी क्या है देखिए तो कोऑर्डिनेट का 2 × 0 1 × a, यानी a/3 ना, 1:2 यानी 1 × a प्लस 2 × 0 अपॉन 1। और q कितना है, देन आल्सो 1:2 QC यानी 2 है, यानी ये 2 है और ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 × AB, हाँ 2 × 0 and 1 × B, that is B/3, B/3, हाँ B/3। तो कह रहा है देन शो दैट PQ का वेक्टर क्या होगा। अच्छा ये हर में कर रहा हूं, जब भी कोई वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ द एंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द बिगिनिंग पॉइंट, देन B/3 minus A/3, this is 1/3 B minus A। BC वेक्टर इज व्हाट, फिर वेक्टर BC क्या है, BC, C बाद में बोल रहा हूं, तो दैट इज इक्वल टू B minus A, B minus A, हाँ ऑब्वियसली BC equal to 3 times PQ। प्रूव वही तो चाह रहा है ना, ABC P एंड Q BC PQ, हाँ वही बात है। 1/3 of BC PQ is 1/3 of BC, और BC is 3 times PQ। और कह रहा है PQ is parallel to BC, तो देखो here BC equal to K times PQ, ऐसा मैंने बताया था। therefore BC यानी कांस्टेंट पैरेलल टू PQ। अगर कोई वेक्टर कांस्टेंट टाइम्स ऑफ द अदर वेक्टर है तो वह पैरेलल है। स्केलर वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट बोल रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि द अदर टीचर मे कम एनी टाइम, बिल्कुल वो इतना टाइम से रेगुलर है। नाउ चिल्ड्रेन आई शैल टेक again, I shall do the exercise questions. I shall come to scalar product. Sorry my children. बट बिफोर आई स्टार्ट आई विल टेल यू अगेन, पता नहीं क्यों मुझको संकोच हो रहा है कि आप लोग नहीं समझे हैं। अगर कोई वेक्टर बेटा ए बी चाह रहा ना, इट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही तरीका है।
अब ए का वेक्टर अगर मान लो 3i प्लस 4j प्लस 5k, बी का वेक्टर i प्लस j माइनस 2k, तो ऐसा इसमें सब्ट्रैक्ट करके और तब लिखेंगे। लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज a, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ b यानी b पोजीशन वेक्टर ऑफ a, दैट इज a, ऐसा कर दिया करेंगे। और दूसरी बात ये बताया हूं, मैंने इसके वेक्टर से इसके पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा बात ये बताया हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, बस वो IJK में होना चाहिए, नॉट एवरीवेयर माय चिल्ड्रन, नॉट एवरीवेयर, IJK में होना चाहिए। एनी वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस 5k, अगर ऐसा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर दिस इज व्हाट, इज अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अगर मान लो सेकेंड एग्जाम्पल करूं, xi प्लस yj प्लस zk, तो इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड इज व्हाट, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका क्या होगा, फॉर वेक्टर a 2a प्लस 3b प्लस 6c, then its magnitude अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 7। रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप कहेंगे वही तो काम कर रहे हैं आप, यहां भी अंडर रूट, अगर मान लो कह दूं एक थर्ड एग्जाम्पल, एक सेकेंड, एक और फोर्थ एग्जाम्पल, i प्लस j प्लस k, मैग्नीट्यूड इज व्हाट, अब यहां गलत कर दिया हूं तो फिर यहां कैसे करूंगा, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अंडर रूट 3। ये सही है। तो आप इनमें देख रहे हैं कि क्या बात है, कि क्यों ये सही है और वो गलत है, क्योंकि उसमें IJK नहीं है, यह केवल फार्मूला होगा। तो क्यों सर, क्योंकि ABC ये यूनिट वेक्टर नहीं है और नहीं इनके बारे में पता है कि x एक्सिस के डायरेक्शन में है, y एक्सिस के डायरेक्शन में है, z एक्सिस के डायरेक्शन में, देयरफॉर ये करूंगा। तो ये बात अपना समझ लेना। और पोजीशन और किसी भी वेक्टर को निकालना है, एंड पॉइंट वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट वेक्टर। तो दिस आई हैव डन। देन स्केलर कुछ कर दो, मतलब खूब क्वेश्चंस आएंगे, तो जब तक हम नहीं समझे रहेंगे मुश्किल होगा। IJK आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, लेकिन सभी वेक्टर्स नहीं। अगर कह दें ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दैट डज नॉट मीन कि वो IJK है। So many vectors are there which can be perpendicular to each other. This is only whatever I shall do in IJK, scalar product, only scalar product. Scalar product, if there is any vector A and the other vector B, then the scalar product is defined as vector A dot vector V is denoted equal to mod A mod B, यानी इनका मैग्नीट्यूड and cos of the theta, where theta is measured from B to A। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सुनिए यही, क्योंकि वो cos थीटा होगा तो वो B to A है,
तो थीटा, अगर ए टू बी है तो माइनस थीटा, और वो माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें जानना जरूर है कि थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि जब दूसरे में अगर कहीं साइन थीटा कहीं हमारे डिफिनीशन में दें तो दैट वोंट बी ना। यस, हाँ, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कभी बेटा अगर कॉस थीटा निकालना हो, कॉस थीटा निकालना हो तो आप कहेंगे ना ए डॉट बी अपॉन मॉड ए एंड मॉड बी। थर्ड कहूं, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर कोई एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला, अगर मान लो थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, cos 90 इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए एंड मॉड बी, है ना, एंड देन दिस इज 0 एंड देयरफॉर ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा ना। अरे ये 0 हो जाएगा तो 0 चला जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0। any more, any, if a is parallel to b, you know vector a equal to any scalar multiple of vector b, और कुछ, हाँ, a dot a हाँ का क्या हो जाएगा, that will be vector a square, वेक्टर ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट क्या होगा, देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, तो उसके बाद cos 0 इज 1, तो देयरफॉर हियर ए स्क्वायर, ए डॉट ए और कुछ, हाँ, दैट इज, हाँ, ए स्क्वायर इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर, हाँ, एक ही बात है क्योंकि स्केलर हो गया वो। प्रॉपर्टी 6, ए डॉट फॉर एनी टू वेक्टर्स ए प्लस बी, हाँ ये कर दूं बिल्कुल। प्रॉपर्टी 8, हाँ, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आई जे के वी हैव, ठीक है, ये दोनों करना ही जरूरी है। यस, अगर हम चाहें a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट a प्लस बी होल स्क्वायर, देन वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर है, मल्टीप्लिकेशन है, सो डॉट b। स्केलर में ही ऐसा मल्टीप्लाई होगा। एंड सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर, द सेम वे ए स्क्वायर प्लस बी, जैसे अपना छोटी क्लासेस में करते हैं, -2 ए डॉट बी, एंड हियर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज वेक्टर ए स्क्वायर। तो अच्छा है ना, सब आप जानते हैं। हाँ, उसके बाद से ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुई, कुछ मान लो 5th मैंने बताया हो तो, और 6th देख लो, 6th आई डॉट जे, यानी आई डॉट जे क्या होगा, मॉड आई मॉड जे cos 90, इसलिए 0। फिर से सुने हैं, आई डॉट जे यानी मॉड ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी cos थीटा, cos थीटा, तो हाँ, देन आई डॉट जे इक्वल टू मॉड आई मॉड जे, हाँ, और उसके बाद से cos 90, सो 0। सिमिलरली जे डॉट के, सिमिलरली के डॉट आई, दैट ऑल 0। क्यों होगा कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यही तो प्रॉपर्टी चाह रहा है। एनी मोर प्रॉपर्टी 8,
आई जे जे के तो 1 होगा ही होगा, हाँ आई है। और उसके बाद से आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि मॉड आई दैट इज 1 into 1 और cos 0। ओके क्या? ओके ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ जाऊं अब, क्या है? हाँ, कंपोनेंट से छोड़िए, प्रोजेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन। Projection of a vector. A on vector B. Say here is the projection, here is the vector A and here is the vector B. इनका प्रोजेक्शन चाह रहा है, शैडो चाह रहा है, शैडो। ये शैडो चाह रहा है, यानी ये चाह रहा है D, हियर इज B। इसका AB का वेक्टर B पर प्रोजेक्शन CD और यू कैन से AE, ये चाह रहा है। ये कितना होगा? तो दिस वेक्टर B इक्वल टू, अगर ये इनके बीच में थीटा हो, इनके बीच में, तो B इक्वल टू वेक्टर A cos थीटा। Vector B, this magnitude A equal to B cos theta, A equal to, हाँ, then vector V equal to A cos theta। तो मैं जरा देख लूँ कि projection of a vector A on B is on this B is A cos theta। तो एक मिनट, since we know that A dot B equal to mod A mod B cos theta। तो A dot, तो वेक्टर B here A cos theta, वेक्टर B is A cos theta here, तो फिर A cos theta is वेक्टर, तो A dot B upon mod B equal to mod A cos theta। तो and this mod A cos theta is equal to वेक्टर V, तो वो कर दिया। इसका मतलब ये है कि कहीं भी अगर प्रोजेक्शन लूं मैं, तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। मुझे तो ज्योमेट्री समझाना था, और जितना ही समझाना उतना ही तंग करना है बच्चों को। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ A ऑन B दैट इज A डॉट B अपॉन मॉड B। जिस पर चाहिए उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देना। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ a vector B on A, then A dot B वैसे ही रहेगा, लेकिन अपॉन मॉडुलस ऑफ A दिया भी होगा उसने। हाँ ठीक है। A डॉट बी अपॉन, ठीक है। अब क्वेश्चन करें या एक्सरसाइज पर आए? ये तो किया ही हुआ है बच्चे जो हैं। चलिए एग्जाम्पल तो किया ही हुआ है, दे कैन डू इट। आई एम गोइंग टू द एक्सरसाइज। कुछ तो कर दें, हाँ। और आगे थोड़ा ऊपर तक बढ़ाओ तो मैं देखता, नहीं ये नहीं बढ़ाना ना। अच्छा, ये उस एक्सरसाइज का है। A इक्वल टू बी देन फाइंड। बेटे हाँ, थोड़ा सा ये स्टिक कहाँ है?
आई एम अफ्रेड एनी टाइम द अदर टीचर विल बी कमिंग एंड दैट विल बी, हाँ. Find A dot B. A dot B. A dot B means, look here, A dot B, then if this is and this is, find A dot B. A dot B is equal to mod A. इसको डॉट मल्टीप्लाई कर दो, इसको डॉट मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? हाँ, यस, mod A mod B cos थीटा. एक मिनट, इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन है? नहीं. फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B वेर A एंड B. तो ये चलो 6th कर दे रहा हूं. 5th का थोड़ा एक्सटेंडेड है, थोड़ा हल्का सा बड़ा है. I should come at the other time because I have got the shortage of time. Find the angle between the vectors A and vector. Vector A is here. Vector A is here. 4i minus 3j plus 2k. And vector B is here. 3i plus 4j. A equal to 4i minus 3j plus 2k. Vector B is 3i plus 4j. It wanted angle between them. It wanted angle between them. Yani I know cos theta is A dot B upon mod A and mod B. That is, that is equal. बेटा एक और, अच्छा चलिए अभी कर रहा हूँ, उसके बाद समझा दूंगा. 4i minus 3j plus 2k whole into whole dot product है 3i plus 4j. अच्छा है, क्वेश्चन करते हैं. अपॉन mod A 5√2 and here into 5. देखना कैसे, ये तो mod A. इसका मॉडल्स कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. 16 प्लस 9 प्लस 4 ना, कैसे ये 16 प्लस 9 एंड 4 29. ये क्या है? ये 2k है ना. मैंने सोचता था जरा अच्छा आएगा. 4 ही बेटा नहीं. हाँ, दैट इज अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. अच्छा नहीं लग रहा है ये. क्या, ठीक है, क्या करेंगे? मॉड ए डॉट बी बच्चे करना हमको. ये जरा सा समझाओ. अच्छा चलो इसको पहले मल्टीप्लाई करो. अब प्रैक्टिकली मल्टीप्लाई करके देखो तो 4i से 3i मल्टीप्लाई करेंगे तो 12i स्क्वायर यानी 1 i स्क्वायर इक्वल टू j स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर. तो क्या होगा? i डॉट i होगा, मतलब ये तो 1 हो जाएगा i का एंड स्क्वायर देन दैट इज cos 0. मतलब ये है कि 4 इंटू 3 12. और फिर उसके बाद इसी, तो यहां क्या करेंगे? फिर i से सबको मल्टीप्लाई करेंगे. इसको j को तो 0 होगा. इसी तरह से -3 से ji को मल्टीप्लाई करके तो j डॉट i cos 90 और j डॉट j फिर उसके बाद हो जाएगा 16. तो ऐसा करके एक तरीका है कि a1i प्लस a2j प्लस a3k होल डॉट b1i प्लस b2j. मान लो ये दो वेक्टर हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? a1 b1 प्लस a2 b2 रेस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन प्लस a3 b3, ये हो जाएगा इनका.
तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 A1 A2 12 माइनस 3 प्लस 4 12 माइनस 12 एंड 2 इंटू 0 बस 12, तो 0 हो जाएगा। ओहो, दैट इज अपॉन अंडर रूट 29 एंड अंडर रूट और दिस इज इक्वल टू 5, दैट इज 0, सो थीटा इज 90 डिग्री। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं तो बच्चों को कम बता रहा हूं। पहले ये इस ओके, द आंसर इज 90 डिग्री, बट बिफोर दैट नहीं करेंगे, 2 दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट to know, important. First, if two vectors are multiplied या dot multiplied like if two vectors are dot multiplied means scalarly multiplied, e.g. for example a1i plus a2j plus a3k, ये हो गया डॉट b1i प्लस b2j, ये दूसरा वेक्टर है। हाँ, देन तो उनके आई के, जे के और के जो रेस्पेक्टिव मल्टीप्लीकेशंस हैं स्केलर, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। क्यों है ऐसा? जैसे मान लीजिए a1b1 आई स्क्वायर हुआ, लेकिन a1b1 a1b2 आई डॉट जे क्या है? आई एक्स एक्सिस में है, जे वाई एक्सिस में है, उनके बीच का 90 होगा, cos 90 0, तो इसलिए आई डॉट जे आई डॉट के 0 हो जाएगा। इसी तरह से a2b2 रह जाएगा जे स्क्वायर के कारण, लेकिन आई और के साथ वो 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली आप मल्टीप्लाई करके देख लो तो यही आएगा। दूसरी बात कि ये हो गया। एक और बता दूं आपको, हाँ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कोई वेक्टर है, हैज द मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा। तीसरी बात, एंगल अगर पूछूं कहीं, तीसरी बात, द एंगल बिटवीन, ये तो लिखवा चुका हूं, ए एंड बी इज गिवन बाई that is cos theta equal to a dot b upon mod a and mod b, क्योंकि वो फार्मूला होता है ना, mod a mod b cos theta, a dot b equal to mod a mod b cos theta। तो ये एक प्रकार से एक देखे रहना चाहिए, समझे रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर यूज होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन अगर आ जाता है तो और कर ले रहा हूं, सिंपल क्वेश्चंस। चलो तो 10 ये तो हो जाएगा। ए यहां पर mod a mod b, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, नहीं, इफ एंगल बिटवीन a एंड b 60 डिग्री देन फाइंड a डॉट b। तो क्या करेंगे, हैं, cos 60 इक्वल टू a डॉट b अपॉन mod a mod b, तो a डॉट b निकल जाएगा, करना पड़ेगा। फाइंड वेक्टर इन डायरेक्शन
हुज मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू, हाँ 9 10 कर दे रहा हूँ. इफ गुड लक आई एम गेटिंग द टाइम. Find a equal to root 3, b equal to 2, angle between a and b is 60, angle between a and b is 60, a and b is 60 degree. Then find a dot b. A dot b. A dot b. So a dot b is defined as what? Is defined at what? Mod a mod b cos of theta. Mod a is here root 3. Mod b is here 2. And cos theta, that is cos 60, that is 1 by 2, and so root 3. Answer. A dot b चाह रहा है और a और b के एंगल दिया हुआ है, सो मैंने लिख दिया cos theta is cos 60 और cos theta लिखा हूँ. नेक्स्ट 10th, फाइंड a vector in direction a I minus 2j. 10th, which question was this one? 10. नहीं, ये तो 9th था. 9. I am always afraid the teacher, if comes, I have to leave immediately. Find a vector in direction. Find a vector in direction of vector A. The vector in direction of vector A, that is I minus 2j. This is the last question. I minus 2j. Whose magnitude is 7. I want a vector whose magnitude is 7, but here the magnitude, here the magnitude of vector A अभी बताया हूँ कैसे निकालते हैं. अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी अंडर रूट, बस i माइनस 2j है ना. हाँ, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी अंडर रूट 5. कह रहा है नहीं, आप हमें बताइए जिसका मैग्नीट्यूड हो 7 तो पहले यूनिट वेक्टर ही निकाल दूं. ये कह रहा हूं इसका तो मैग्नीट्यूड अंडर रूट 5 है, सो यूनिट वेक्टर, अरे इसमें डिवाइड कर दूंगा i माइनस 2j अपॉन अंडर रूट 5 ना. अरे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो 1 हो गया ना. इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 से डिवाइड किया तो, लेकिन वो चाह रहा है बट वी वांट द वेक्टर इन दिस डायरेक्शन ओनली. इसी में चाहिए. कह रहा है वेक्टर का डायरेक्शन यही हो, but of magnitude 7. तो भैया ये जो i माइनस 2j था, इसका मैग्नीट्यूड था अंडर रूट 5. मैंने अंडर रूट 5 से डिवाइड कर दिया तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड 1. लेकिन नहीं, वो चाह रहा है नहीं 7 होना चाहिए. तो ठीक है, जब इसका 1 है तो 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 होगा ना. सो ये क्या होगा, i माइनस 2j. यही है यूनिट मैग्नीट्यूड.
यह है यूनिट ना वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई 7 द आंसर. That's all. Again continue